आदरणीय बिंदु जी को। इनके स्वर, भाव और एकाग्रता से तो आप सब परिचित हो ही गए हैं। सरस्वती वंदना जो उन्होंने इतनी सुंदर और इतनी मधुर आवाज में पढ़ी। त्रिशूर केरल के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक लेखक, कलाकार बिंदु जी वर्तमान में कैलिफोर्निया में रह रही हैं और कला के क्षेत्र में विभिन्न आयामों से जुड़ी हुई हैं। An author of 2 poetry collection books, actress Bindu ji is actively involved and participated in literature and cultural organizations in California. आज आप भाषा और लिटरेचर का हमारे जीवन के महत्व को लेकर अपने विचार रखेंगी। उनको आमंत्रित करता हूं इन पंक्तियों के साथ कि भाषा हो तो बढ़ जाती है जिज्ञासा, भाषा हो तो बढ़ जाती है जिज्ञासा, व्यक्त सहज ही हो जाती है हर अभिलाषा। आदरणीय बिंदु जी, स्वागत है आपका। Thank you, Digambar ji. Can you hear me properly? Yes, we all can hear you, I think. Okay. Thank you. Sure. Good evening, everyone. Sapna ji, thank you for inviting me to this UBI Fest. I'm here to talk about importance of learning language and reading literature in our life. There is a proverb, learning a language will avoid a war. Today is really a wonderful day. People from all parts of the world have united under the power of pen, with the beautiful common goal of expanding their knowledge of the languages of the world. On the other way, according to that proverb, here we gathered with a dream of avoiding a war. What amazes me is that in this era, the people gathered here today have not come together to learn computer code or advanced science, but to learn languages and absorb literature. These days, everyone runs around in a frenzy, desperate for success. But what is the real definition of success? For some people, the success means having a 6-figure salary by the time they are 25, or owning a mansion before they are 30. If that is your definition, you are probably better off taking computer programming classes, not language. Unfortunately, even today, there is a stigma around people who are passionate about literature or any other art forms. People assume that these artists are doomed to an unsatisfying career with a meager salary. Because of this stigma, much of the world has come to believe that literature is so insignificant. Of course, wealth is an important factor in our life. But to be a well-rounded human being and to create a more diverse and harmonious world, it is vital for people like you and me to develop a taste for language and literature. Language is the most direct path to different cultures. Learning a language is not just learning its grammar and vocabulary, but it is learning new sounds and expressions. Language creates a new lens for readers to see the world in a different and even better way. The ability to communicate in a different language fosters an understanding and appreciation for traditions, religions, and history of the people. Studies show people who are open to learning new languages expresses a more positive attitude towards the culture associated with that language. Nelson Mandela once told, "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. But if you talk to a man in his language, that goes into his heart." The ability to communicate to a person in their own language is an incredible gift. Bilingual people
have the unique opportunity to communicate with a wider range of people in their personal and professional lives. Many of us gathered here today have come in the hopes of learning a second or third language. This implies that in the midst of our deeply divided society, you all have dreamed about a world filled with peace and harmony. When you choose to learn Malayalam, the whole state of Kerala becomes your own. Similarly, when you choose to learn Marathi, Gujarati, or Punjabi, you are also choosing to be adopted into the cultures of their respective states. Back when India was broken up into states, language was one factor that divided one state from another. By learning new languages and penetrating different cultures, you are breaking down the barriers that once divided us. What role does literature play in our lives? Can you imagine a world without stories? No. When many of us were young, we would ask our parents and grandparents to entertain us with a story. Some intellectuals would tell us stories from Bible, Mahabharata, Ramayana, or Quran. These stories inscribe in our minds some of the most valuable principles of life. Others will share simple stories from their own childhood. These stories give children a glimpse into what life was like way back then. They give us a sense of our history and insight to our origin. It tells us our identity. They inform us of the events and people that are essential to our present lives. If these stories are written together into an organized and artistic piece of literature, it becomes classified as life story or autobiography. The stories from our parents are only relevant to ourselves. But we all know the significance of autobiographies of Anne Frank, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, and more. These stories are relevant to everyone, everywhere. Through this piece of literature, people can learn about life and specific events of the past that changed the course of history. If Anne Frank had not written in her diary, how would we gain insight into the life of a little Jewish girl hiding from the claws of Nazis? Many works of literature create a strong bond with the people through the stories they tell and the messages they carry. When people read these works, they tend to relate to the emotions portrayed, creating a deep sense of empathy with some of the characters. For example, I would like to share my personal experience. There is a story by Leo Tolstoy, God Sees Truth but Waits. I read this story when I was just a girl. The story is about a man, Ivan, sent to prison for a murder he did not commit. 26 years later, the real killer meets him in prison and confesses his guilt. When I was in school, I have experienced the same feeling of betrayal in a much smaller scale. Some friends spread rumors about me and accused me of things I did not do. This incident made me depressed and unmotivated to go to school. My self-confidence was shattered and my confidence crumbled. The only way for me to handle my pain was by crying endlessly. But when I remembered the story of Leo Tolstoy, like Ivan, I began waiting for the real culprit to admit their guilt and hoped that God would see the truth one day. Relating to Ivan helped me leave behind the pain and frustration I felt and move on with my life. Miraculously, after 25 years, during a school reunion, the same people who spread the rumors revealed the truth that I was not at fault. Although this was a story deep in my past, there was a great sense of satisfaction that came with the unveiling of the truth.
I was elated and felt as though I had regained everything I thought I lost. If I had not remembered the story of Leo Tolstoy during that time, I would have had a much harder time overcoming the frustration I felt. Similarly, great works of Shakespeare, like King Lear, the play about an old king who makes serious errors in judging his daughters, gives us an insight to family relationship and practical wisdom we must have in our life. The novel Old Man and the Sea by Ernest Hemingway teaches us that our strength is only as steady as our willpower. A person may be able to defeat us by our mortality, but will never destroy our passion and legacy. By reading and walking through the lives of characters in literature, we subconsciously practice making decisions in similar situations. Reading about and understanding these characters make us more holistic and emotionally intelligent people. Reading liberates us from isolation. Relating to characters help us realize that we are not alone. I have even heard of people who have escaped suicidal thoughts by reading good poetry. This is the healing power of literature. When we look close into literature, it is basically the transaction of a very personal message from the writer to the millions of readers. All literature, whether it be poems, essays, novels, or short stories, helps us understand human nature and the conditions that affect all of us. We need literature to access our humanity and extend our empathy to others. Reading literature is a tool we can all use to unite our divided society. So today, as you all choose to learn a new language, you are opening the doors of new literatures and new cultures. You are giving yourself the opportunity to connect your heart to others and allowing yourself to become the best version of yourself. Let us all come together, be united under literature, language, and ink. Learn a language and avoid a war. Thank you so much and good luck for UBI endeavors. Thank you very much, Induji. As you rightly said, learning a language will avoid a war. Learning the language is penetrating one's culture. People can learn about the life through literature. As literature helps you coming out of your frustration, I'm sure literature is helping everyone to move forward in their life step by step. It leads everyone to a positive step in their life. Thank you very much for your wonderful and kind words. I hope everybody has gained something out of your words. And I once again thank you very much. कार्यक्रम हमारा धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा पड़ाव अभी हमारा बाकी है. निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल. अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जितेंद्र भारद्वाज जी को. आप वर्तमान में दार एस सलाम तंजानिया में एक फार्मा कंपनी में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं और हिंदी हैं हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी मंच के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं. अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपने काव्य पाठ किया है. विश्व हिंदी सेवा सम्मान 2021 और प्रहरी सम्मान 2020 से सम्मानित जीतू जी तंजानिया में रहकर हिंदी भाषा के जमीनी कार्यकर्ता हैं. हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार से जुड़े कर्मठ योद्धा जितेंद्र जी को इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कि जिसमें मैंने ख्वाब बुने जागी आशा, जिसमें मैंने ख्वाब बुने जागी आशा, माँ माटी होती है निज की वह भाषा. जितेंद्र जी, आपका स्वागत है. आप हमारे बीच अपना विषय भी रखें और अपनी कविता जरूर सुनाएं.
सबको आनंदित करें। जितेंद्र जी। धन्यवाद, धन्यवाद दिगंबर भाई। मुझे इतने अच्छे परिचय से बुलाने के लिए सबसे पहले आपका आभार। और आभार सपना जी का, जिनके आह्वान पे मैं आज यहाँ ऑफिस से बैठकर लाइव कर रहा हूँ, ये पहली बार हो रहा है। और यूबीआई पूरी टीम को बहुत सारी बधाइयाँ इस नए पखवाड़े के लिए जो आज से आप लोग शुरू करने जा रहे हैं। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि सपना जी ने मुझे इसका पार्ट बनाया, इस इनॉग्रेशन सेरेमनी का पार्ट बनाया। बिंदु जी और अरुणा जी और हमारी आज की अध्यक्षा डॉक्टर कुलदीप पावा जी, इन सब का सानिध्य, इन सब के आशीर्वचन मुझे सुनने को मिले, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ। और रही बात यूबीआई की, तो देखिए नाम ही कितना खूबसूरत है, यूनाइटेड बाय इंक। मतलब इंक से जिन जिन का रिश्ता है उन सबको इकट्ठा करने की, इन सबको कलेक्ट करने का जो बीड़ा उठाया है वो हमारी बहन सपना केकरे जी ने उठाया हुआ है। और जैसा उन्होंने बताया कि आज 6000 से ज्यादा का परिवार हमारा बन चुका है, तो अभी तो ये मैं कहूँगा शुरुआत है। अभी 6000 जुड़े हैं, आने वाले टाइम में 6 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं आपके। और चूंकि ये 15 दिन का पखवाड़ा चल रहा है, तो जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, मैं सब लोग चाहूंगा कि वो सारे लोग सबसे पहले यूबीआई के पेज को लाइक करें और उसको शेयर करें, उसके बाद आगे की बात हम लोग करते हैं। क्योंकि अभी तक जितने वक्तव्य हुए, किसी ने ये नहीं बोला कि यूबीआई को फॉलो करना है, यूबीआई को शेयर करना है। क्योंकि आप देख रहे हैं मित्रों कि 15 दिन का पखवाड़ा, फिर वो कला, साहित्य, कविताएं, रचनाएं, लेखक, न जाने क्या क्या यहाँ, डांस परफॉर्मेंसेस और गीत संगीत, बहुत कुछ यहाँ होने वाला है इस पखवाड़े में। तो बहुत आनंद आने वाला है हम सब लोगों को। तो जितने ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, न केवल यूबीआई के लिए बल्कि उन जुड़ने वाले लोगों के लिए भी। बात अगर भाषा की चली है, तो आजाद भाई ने बात शुरू करी थी, उसके बाद सब लोगों ने अपने अपने वक्तव्य रखे। तो मैं कोई बहुत बड़ा ओरेटर नहीं हूं, लेकिन कुछ जमीनी बातें मैं बता देना चाहता हूं कि भाषा, चाहे फिर वो बुंदेली हो, चाहे फिर वो राजस्थानी हो, चाहे फिर वो हिंदी हो, चाहे फिर वो पंजाबी हो, लेकिन भाषा हमको न केवल ज्ञान देती है बल्कि भाषा हमको संस्कार देती है। अगर मेरा बच्चा अगर यहाँ तंजानिया में रह रहा है और अगर वो अंग्रेजी को फॉलो करेगा या दूसरी भाषा को फॉलो करेगा, तो वो मुझसे बोलेगा हेलो डूड, हाउ आर यू। जबकि मैं चाहता हूं कि वो सुबह उठ के मुझको राम राम करे। मैं चाहता हूं कि जब भी कोई घर में अगर कोई अतिथि आए तो वो उसके पैर छुए और हाथ जोड़ के नमस्कार करके उसको संबोधित करे। तो भाषा न केवल आपको ज्ञान देती है बल्कि भाषा आपको सम्मान देती है, भाषा आपको संस्कार देती है। तो अगर हमें अपनी जड़ों में संस्कार जीवित रखना है और न केवल इस पीढ़ी तक बल्कि अगली पीढ़ी तक और बहुत सारी पीढ़ियों तक संस्कार को लेके जाना है, तो भाषा को मत मरने दीजिएगा। फिर बात आती है कि भाषा, कौन सी भाषा? तो जितनी भी हमारी भारतीय भाषाएं हैं, यूबीआई का यही मोटो भी है कि, और जो पखवाड़ा आज से शुरू हो रहा है, जैसा मुझे सपना जी ने बताया कि बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस अभी यहाँ शुरू होने वाली हैं, विभिन्न भाषाओं की क्लासेस यहाँ शुरू होने वाली हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर ये कविताएं और जो अपना प्रोफेशनल वर्क है उससे अगर शाम में कुछ समय निकल सके, तो मैं भी कोई एक नई भाषा सीखने की कोशिश मैं भी करूंगा और सबको प्रोत्साहित भी करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। तो ये इनका मोटो इतना अच्छा है कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उसमें बहुत सारी भाषाओं को ये लोग सिखाने वाले हैं। उसके लिए सोचिए कि बैकग्राउंड में कितना काम किया होगा, उन सबके एक्सपर्ट इन्होंने ढूंढे होंगे, उन सबसे कोऑर्डिनेट किया होगा, उन सबका टाइम इन्होंने लिया होगा। तो अब बारी है, मैं निवेदन करूंगा उन सभी प्रवासी भारतीयों से जो भारत से बाहर रह रहे हैं तो गुजरात से पर बच्चे को गुजराती नहीं आती, है तो उत्तर प्रदेश से पर बच्चे को ब्रजभाषा नहीं आती, है तो पंजाब से पर पंजाबी बोलने लिखने पढ़ने में, ऊड़ा एड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है। तो ऐसे सभी लोग, आपके पास मौका आ गया है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है यूबीआई के माध्यम से। एक मेरी असमंजसता है, अभी पीछे हमने यहाँ विश्व हिंदी दिवस पर एक कार्यक्रम किया था और उसमें हमने अशोक चक्रधर जी को बुलाया था, यहीं की एक हिंदी संस्था है, उसने ये कार्यक्रम किया। तो मैंने वहां भी एक प्रश्न पूछा था कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम हिंदी को प्राथमिकता देते हैं,
और क्योंकि मैं तो हिंदी को लेकर खुद मैंने बीड़ा उठाया हुआ है, आप सब लोग जानते ही हैं, सपना जी जानती हैं। लेकिन जब एक 10th क्लास का या 11th क्लास का या 12th क्लास का बच्चा जिसको पढ़ने के लिए हमने कनाडा भेज दिया है और माँ बाप दूसरे देश में रह रहे हैं, और जब हम फोन पे बात करते हैं तो हम उससे कहते हैं कि बेटा हिंदी सीख, कुछ अगर वहाँ हिंदी की क्लासेस वगैरह हो तो वो तू ज्वाइन कर ले, हिंदी जरूर सीख। तो हमारे कुछ कवि सम्मेलन मंचों का बहुत प्रचलित जुमला है, मैं आपको बता दूं कि अगर कार चाहिए तो अंग्रेजी सीखो, लेकिन संस्कार चाहिए तो हिंदी सीखो। तो मेरा कथन ये था, अशोक जी से भी मैंने कहा था और आज आप लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमें कार चाहिए तो हम अंग्रेजी क्यों सीखें, हिंदी सीख के कार क्यों नहीं मिल सकती हमें? बिल्कुल मिल सकती है जीतू जी, बिल्कुल मिल सकती है। और अपनी भाषा को जब सहेज लेंगे तो दूसरी दुनिया की भाषाएं अपने आप अपने साथ आ जाएंगी। बिल्कुल। तो आप ये सोचिए कि ये मैं उसी बात को कह रहा हूं कि जो ये चाहे फिर वो अमिताभ बच्चन साहब हों, चाहे वो शाहरुख खान साहब हों, चाहे वो अक्षय कुमार साहब हों, अगर ये लोग मर्सिडीज में चलते हैं तो उनको वो कार उस हिंदी भाषा से ही मिली। उसी हिंदी भाषा की मूवीज वो लोग बनाते हैं, फिल्में वो लोग बनाते हैं, उसी का हिंदी म्यूजिक वो लोग बनाते हैं। अभी तो अपना ये जितना कल्चर बेस्ड ये भी बहुत ज्यादा हो गया है, अपना जो क्लासिकल म्यूजिक है उसको भी लिया जाता है। सब कुछ हिंदी से ले रहे हैं, सब कुछ अपनी भाषाओं से ले रहे हैं। बहुत सारा साउथ इंडियन सिनेमा है, अपनी भाषाओं का सिनेमा है, भोजपुरी सिनेमा है, वहीं से ये लोग कमा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा कष्ट होता है जब अवार्ड लेने आते हैं तो बात इंग्लिश में करते हैं। क्यों भाई? ऐसी मतलब आपको पैसा मिल रहा है 100 करोड़ 500 करोड़ों की, आप फिल्में बना रहे हैं, वो बना रहे हैं आप हिंदी में। तो जब वहां आके अब वहां भी जब तक ये लोग हिंदी को प्रचारित प्रसारित नहीं करेंगे, दुबई में अगर आप फेस्ट कर रहे हो तो वहां आप हिंदी को भी लेके जाओ ना अपने साथ में। आप केवल फिल्म को लेके जा रहे हो, फिल्म की भाषा को लेके नहीं जा रहे। तो ये काम अमिताभ बच्चन नहीं कर रहे, अक्षय कुमार नहीं कर रहे, संजय दत्त नहीं कर रहे, शाहरुख खान नहीं कर रहे, लेकिन यूबीआई इस काम को कर रहा है। तो मित्रों, ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है जिसकी केवल शुरुआत अभी हो रही है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि यूबीआई के संग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ये जो काम शुरू होने वाला है आज से भाषाएं सिखाने का, इसको इतना फैला दें कि सपना जी परेशान हो जाए। मैं तो यही बोलूंगा। नहीं, मैं परेशान नहीं होंगी, मैं जीतू जी को बोलूंगी कि इसको और कैसे आगे बढ़ाना है, इसको और कुछ और लोग जोड़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे। सपना जी, तन से मन से धन से मैं हमेशा साथ में हूँ, और हिंदी की जहां भी बात होगी, भारतीयता की जहां भी बात होगी, भारतीय संस्कार की जहां भी बात होगी, वहां जितेंद्र भारद्वाज कभी पीछे नहीं रहेगा। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूंगा, और आपके इस अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अफ्रीका में तो मेरी है। मैं इसको पूरा आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ जितने लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकते हैं। और एक कवि की कुछ पंक्तियां हैं वो मैं सुना देता हूं, जो फिर मैं अपनी भी एक सुना दूंगा क्योंकि दिगंबर भाई ने निवेदन किया है, लेकिन जो बिल्कुल अभी सार्थक होती हैं आपके आज की पहल से, वो मैं कुछ पंक्तियां मैं गुनगुना देता हूं कि अंग्रेजी जो केवल धन की भाषा बोल सकती थी, रखी बाजार में वस्तु का केवल मोल करती थी, जुड़ी वो काम से इसलिए बनी वो मान की भाषा। अंग्रेजी की बात कर रहे हैं हम। जुड़ी वो काम से इसलिए बनी वो मान की भाषा, बनी वो आज पूरे विश्व में अभिमान की भाषा। और हिंदी क्या हुई कि हिंदी वो जो मन के बंद ताले खोल सकती थी, हिंदी वो जो मन के बंद ताले खोल सकती थी, हमारी आत्मा और ज्ञान का पथ बोल सकती थी, बना के राज की भाषा बहुत अच्छा किया तुमने, बना के राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है अभी भी, बना के राज की भाषा बहुत अच्छा किया तुमने, हटा के काज से इसको बड़ा गच्चा किया तुमने, हटा के काज से इसको बड़ा गच्चा दिया तुमने, बना लें फिर हम इसको सफल व्यापार की भाषा, बना लें फिर से हम इसको सफल व्यापार की भाषा, बना लें फिर से हम इसको सहज परिवार की भाषा, बना लें फिर से हम इसको सहज परिवार की भाषा, बना ये फिर से हम इसको अपने प्यार की भाषा। क्यों कि अगर हम चाहते हैं कि हो कदर हिंदी की पग पग पर,
अगर हम चाहते हैं कि हो कदर हिंदी की पग पग पर, तो उठो जागो हुंकार भरो और पहुंचा दो इसे नभ पर। उठो जागो हुंकार भरो और पहुंचा दो इसे नभ पर। अगर 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 भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते। अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते। और भले ही हो करोड़ों गुण नहीं, भले ही हो करोड़ों गुण पर तुम कुछ रच नहीं सकते। भले ही हो करोड़ों गुण पर तुम कुछ रच नहीं सकते। और महज भाषा नहीं, महज भाषा नहीं, ये माँ हमारी हमको रचती है। बचेगी लाज जब इसकी हमारी लाज बचती है। बचेगी लाज जब इसकी हमारी लाज बचती है। और छोड़ा कर इसे तुमने तो तुम भी छूट जाओगे। और दुनिया नहीं तुम खुद से ही खुद रूठ जाओगे। और उठो जागो करो स्वीकार और प्यार दो इसको। तुम्हारे मान का सम्मान है संसार दो इसको। तुम्हारे मान का सम्मान है संसार दो इसको। फिर तुम नहीं ये सारी धरती डोल जाएगी। तुम्हारे कर्म की भाषा ये सदियों तक सुनाएगी। कहेगी ये हमारे अन्नदाता ज्ञानदाता हैं। कहेगी ये हमारे मान और अभिमान दाता हैं। कहेगी ये हमारे मान और अभिमान दाता हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मुझे लगा था कि ये कविता, ये रचना शायद थोड़ी सी सार्थक है आज के जो आज का जो कार्यक्रम है और जो शुरुआत करी है सपना जी ने। और ये शुरुआत दूर तक जानी चाहिए, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो ये शुरुआत बहुत दूर तक जाना चाहिए। और कुछ मैं थोड़ा थोड़ा अपना सुना देता हूँ। एक दो अशआर से मैं शुरू करता हूँ बात, और क्योंकि समय बहुत हो चुका है और जल्दी जल्दी मैं बात खत्म करता हूँ। जैसा उन्होंने कहा था, अभी आजाद भैया ने कहा था कि जो किसान आंदोलन हो रहा है, तो राजनीति के पीछे तो हम लोग नहीं है। और एक फेवर की और एक डिसफेवर की दोनों बातें करता हूँ, बैलेंस कर दूंगा। क्या बात, स्वागत, स्वागत। तो देखिए, अगर उस आंदोलन में 10% भी किसान है, मैं कहता हूँ 90% फर्जी है, लेकिन अगर 10% भी उसमें किसान है तो सरकार को बुला के बात करनी चाहिए और उनके मुद्दों पे। और फिर वहां वो वाटर फेंका जा रहा है या लाठी चार्ज हो रही है या जो भी कुछ हो रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए। तो उस पे 4 पंक्तियां मैंने जब ये शुरू हुआ था तब लिखी थी, और अभी कल परसों क्या लिखी है वो भी सुनाता हूँ। दिगंबर भैया सुनिए, बस ये यही खत्म करूंगा। तो मैंने जब शुरू हुआ था तब मैंने ये सोच के कि अगर 10% भी किसान है तो ये सब गलत हो रहा है, तो लिखा था कि गलत बात कहने की आदत नहीं है, गलत बात कहने की आदत नहीं है। जो तुम चाहते हो वो हम कैसे कह दें। मोदी जी के अच्छे कामों पे ताली बजाओ, झंडा बुलंद करो, लेकिन अगर कुछ गलत है तो आवाज भी उठाओ, नहीं तो फिर वो सही कैसे करेंगे। तो गलत बात कहने की आदत नहीं है। जो तुम चाहते हो वो हम कैसे कह दें। और तुम्हारे सितम को सितम ही कहेंगे, तुम्हारे सितम को करम कैसे कह दें। तुम्हारे सितम को करम कैसे कह दें, तुम्हारे सितम को करम कैसे कह दें। मैंने कहा कि हर गलत बात पे उंगली उठनी चाहिए और हर सही बात का समर्थन करना चाहिए। तो फिर चाहे वो मोदी जी हो, फिर चाहे वो कोई और हो। तो अगर मैंने ये लिखा था जब आंदोलन शुरू हुआ, तो अभी जब 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद 27 तारीख को मैंने एक वीडियो भी रिलीज किया था और ये चंद पंक्तियां लिखी थी, मैं निवेदित करता हूं कि दिन गणतंत्र का जो तुमने शर्मसार किया, दिन गणतंत्र का जो तुमने शर्मसार किया, कैसे सहे राष्ट्र ध्वज का हुआ अपमान है। दिन गणतंत्र का जो तुमने शर्मसार किया, कैसे सहे राष्ट्र ध्वज का हुआ अपमान है। और आंदोलन की आड़ में जो जेहादी है पाल रखे, आंदोलन की आड़ में जो जेहादी है पाल रखे, गद्दारों की फौज है यही तो खालिस्तान है, गद्दारों की फौज है यही तो खालिस्तान है, गद्दारों की फौज है यही तो खालिस्तान है। और लाल किला भारत की आन बान का प्रतीक, लाल किला भारत की आन बान का प्रतीक, और देश की अखंडता का भव्य सम्मान है।
और देश की संप्रभुता को कर रहा जो तार तार, देश की संप्रभुता को कर रहा जो तार तार, अरे होगा कोई और पर नहीं वो किसान है, होगा कोई और पर नहीं वो किसान है, होगा कोई और पर नहीं वो किसान है। क्योंकि जो झंडा निकाल के फेंका और ये सब हमने वीडियो देखे हैं, उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो लोग किसान तो नहीं हो सकते, वो लोग तो किसान नहीं हो सकते। हाँ, मैंने जो पहली बात कही कि 10% किसान उसमें हो सकते हैं, लेकिन जो वहां गए, जो वो हरकतें हैं, वो लोग किसान नहीं हो सकते। और अगर वो किसान कहते हैं अपने आप को, तो वो किसान कहलाने लायक नहीं है किसी भी तरह से। तो ये मेरी कुछ मैंने अपनी बात यहाँ रखी, और मैं एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ यूबीआई को और सपना जी को, दिगंबर भाई को, और न केवल शुभकामनाएं बल्कि कंधे से कंधा मिला के मैं सपना जी आपके संग काम करूंगा और हम इस मिशन को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया जीतू। ये आपका सच में भाषा, आप सच में प्रहरी हैं भाषा के। कैसे अपनी भाषा को दैन्य दिन के उपयोग में लाना है, इस बात को आपने बहुत ही प्रखरता से रखा है। और सच में कैसे अपनी भाषा पर अभिमान भी करना चाहिए, इस विषय को भी बहुत संजीदगी से रखा है आपने। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। आपकी रचनाओं ने दिगंबर जी, मैं बीच में माफी चाहता हूं। एक संदेश जो मैं हमेशा देता हूं वो मैं जरूर बताना चाहूंगा, और मैं बोल भी देता हूं कि व्यवहारिकता में हिंदी कैसे आएगी। व्यवहारिकता में हिंदी वैसे आएगी, या कोई भी भाषा जो भी आपकी मातृभाषा है, वो कैसे आएगी, जब तक आप उसे घर में नहीं बोलेंगे बच्चों के साथ में, तब तक वो नहीं। सहमत आपकी बात से, बिल्कुल। तो घर में, और जहां मतलब जो अपना समुदाय है, अपनी कम्युनिटी है, अगर उसमें हम अपनी भाषा को पकड़ के रखेंगे, वहां इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, वहां इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, जर्मन, रशियन, चाइनीज ये सब छोड़ दें, वहां ना बोलें, केवल इतना पकड़ के रखेंगे ना, तो भाषा बची रहेगी। ये मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे कहता हूँ। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। और अपनी भाषा पे गर्व भी होना चाहिए, मान भी होना चाहिए, उसको सम्मान भी देना चाहिए, और उसको संभाल के भी रखना चाहिए, और आने वाली पीढ़ी को जरूर सौंपना चाहिए। आप जिस भी भाषा के हैं वो उसको जरूर सौंप के जाना चाहिए। ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और हमें इसको जो है पूरा भी करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई। आपने जो है 4 चांद लगा दिए हमारी इस महफिल में। ये कार्यक्रम लगभग अब समाप्ति की ओर ही है। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस समय निकालकर इस यूबीआई फेस्ट को एक गति प्रदान की है। आदरणीय आजाद शत्रु जी ने समा बांध दिया, आदरणीय अरुणा जी, डॉक्टर कुलदीप पावा जी, बिंदु जी, और आपने जितेंद्र भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे लगातार जुड़ते रहें, 15 दिन तक हमारे साथ रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कार्यक्रम शाम को ही होने हैं। आपकी थोड़ी सी उपस्थिति भी जो है वो सबको बहुत उत्साहित कर जाएगी। मैं अब सपना जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो एक धन्यवाद सबको बोलें, और इस कार्यक्रम को जो है फिर हम विधिवत समाप्त करेंगे। सबसे पहले तो इतने शानदार संचालन के लिए दिगंबर भाई को बहुत बहुत बधाई। जी जी बिल्कुल दिगंबर, बहुत बहुत आभार जी। हमारे मलेशिया की जान है, फिलहाल दिल्ली में अटके हुए हैं। हम वेट कर रहे हैं कि कब ये लॉकडाउन खुले और दिगंबर सर वापस आए और यहाँ पे जो ऑन ग्राउंड हम प्रोग्राम्स करते हैं वो शुरू कर पाए। तो दिगंबर सर की जो छत्र छाया में ही फल फूल रहा है हमारा ये परिवार, और उनकी पकड़ के आधे से ऊपर रास्ता हमने सफर तय किया है। तो उनके मार्गदर्शन के बिना ये संभव बिल्कुल भी नहीं था। और हाँ, भाषा, सबको बहुत अपनी भाषा से प्यार होता है, चाहे वो कोई भी भाषा हो। और चूंकि हम यूबीआई के मंच पे हैं तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, जैसे मुझे अपनी हिंदी से बहुत प्यार है, किसी को अपनी मराठी से बहुत प्यार होगा, मैं खुद मराठी हूँ, और हमें पंजाबी से प्यार है, हमें अपनी राष्ट्र की भाषाओं से बहुत प्यार है। हम सिर्फ एक ही और बात कहना चाहते हैं कि हमें भाषा से प्यार है, हर भाषा से प्यार है, चाहे वो देश दुनिया में कोई भी भाषा हो, हम उस भाषा को साथ में लेके चलना चाहते हैं। और उसके लिए मैं कहीं कहीं मैं जरूर अंग्रेजी का प्रयोग करती हूँ, और उसी वजह से ये थैंक यू नोट भी इंग्लिश में ही बोलना चाहूंगी। All the UBI members, whoever has stood by us today, we love all the languages, and today I
dedicate this platform to all the language lovers. Languages across the globe, our languages are special. Each and every language is so sweet, beautiful in its own way. And every person, whoever belonging to any state, any country, any field, any race, any caste, loves their language. So let's respect everybody's language. Let's respect our own languages and let's take them all together ahead. That's the motto of UBI, to connect people to their own languages, be it Indians or non-Indians, wherever you are. We want to explore the field of language in whichever way we can. Along with language, we want to explore the field of creativity. Any ways we can reach out to people, whoever are listening to us, they want to come in for any creative workshops or anything where we can teach people, we can learn together, we can grow together. We will be more than happy to help you all to learn any new art, any new concept, anything which is new and which is creative. We would be happy to connect those people. So here today, UBI Fest starts off with such a beautiful note. We have our beautiful speakers of the day. Thank you so much, everyone, for giving us your time. Binduji, all the way from USA, sitting at 4:30 a.m. in the morning. Thank you. Really, it was so amazing for you to say yes to me at this hour. Arunaji from Germany, Jituji from Tanzania. Ajadji has left us now, but yeah, he gave us so much time. Even Kuldeep ma'am from Delhi, she had to go, but she is around. She is listening to us. Thank you so much. Thank you, Digambarji, and everybody. My request, please stay connected. अगले 15 दिनों तक रोज प्रोग्राम होंगे, डेली शाम को 5 से 6 बजे के आसपास शुरू होने वाले होंगे प्रोग्राम, या कुछ दिन हम 7 बजे भी शुरू करेंगे. सो कीप अ लुक आउट, द कैलेंडर विल बी सेंट आउट. रोज के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जिसमें अंग्रेजी में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे, और अन्य अलग अलग जो हमारे आर्ट फॉर्म्स हैं हम वो सीखेंगे. हम फोटोग्राफी सीखेंगे, हम भाषाएं तो सीख ही रहे हैं, और बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी हम डिक्लेयर करने वाले हैं. कल का दिन बहुत खास होने वाला है, जब हम अपने स्टार कंट्रीब्यूटर्स से मिलने वाले हैं. हमने सुरजीत सिंह जी की गजलें पढ़ी हैं, हमने श्याम सुंदर जी की कहानियां और पोएट्री पढ़ी है. बहुत सारे हमारे अनगिनत जो स्टार मोटिवेटर्स और स्टार कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं. उनमें से कुछ जो हम आप तक पहुंचा पाए हैं कल की शाम, उनके नाम है. तो कल जरूर आइएगा 6 बजे शाम को, पटल के साथ जुड़िए. जैसा जीतू जी ने मुझे बताया कि आप बोलती नहीं है, आप बोलिए कि ये लाइक कमेंट वाली जो बात है वो भी मैं बोलूंगी. हालांकि जो सोशल मीडिया वाली हमारी फैमिली है ना, जो सोशल मीडिया हमारा परिवार है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है. ये हमारी एक जो किताब है, आपने शायद ना पढ़ी हो, आभासी दुनिया के अनोखे रिश्ते, लॉस्ट एंड फाउंड इन द डिजिटल एरा, हमारी पिछली साल की 2 एंथोलॉजीज हैं. तो उसमें इसी बारे में बात की गई है. तो ये सारे डिजिटल मीडिया के थ्रू मैं सबका आह्वान करूंगी, प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट, एंड यस, शेयर अ वॉच पार्टी फॉर श्योर टुडे एंड एवरी डे. So keep liking, keep sharing, and keep loving the languages. Thank you so much, everybody. Thank you, Digambar ji, for your time. And thank you very much. 15 तारीख तक रोज शाम को सबने आना है. Thank you. और जैसा सपना जी ने कहा, लाइक जरूर करें, हमारे मेंबर बनिए यूबीआई ग्रुप के. हम जब बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, तो उसमें आप सब शामिल हैं. सारी भाषाएं आपस में सहेलियां हैं. बिल्कुल, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं. और लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम जो आ रहा है आज से लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम हम पटल पे डाल रहे हैं. वेबसाइट will be active from tonight, and the new website, as I showed you, tonight onwards it will be active, and the learning lab program is on from tomorrow onwards, and you can enroll from any nook and corner of the world. If you want to learn, right now we are starting with only 4 languages, but yes, God willing, we will start many more learning lab programs of various fields. Thank you so much, everybody. Shabba khair, good night. Dhanyawad. Thank you all.